Hello guys, welcome to my YouTube channel Eagle English. I hope that everyone is well. Okay, and so let us start without any wasting time, without wasting any time. In the previous classes, I have described present continuous sentence. Okay, I am moving to the next topic, that is the present perfect present perfect. So understand the better way to the present perfect sentence, then we should need to the some additional information about the present perfect sentence. How? You have seen many sentences that they have used has, have, or you can say they have used first form, second form, third form. Then without any basic introduction and without any basic knowledge, we cannot understand the present perfect sentence. Okay, so what is the firstly, I think basic components I have completed. That was the present pronoun, verb, subject, object, and other thing. So now and also verb. Okay, so now I am going to describe the form of the verbs. Okay, firstly I will describe the definitionary part of the present perfect tense. What is the present perfect tense, and why should need to understand the present perfect tense, and what is the role in our life. Okay, so before reading any topic, they need to understand that the why we are reading these things and what is the role in our daily life. Okay, so basically leave it. If you have any doubt or queries, that's no problem, you can send in through the comment box. Okay, and through the comment box I will try to solve your doubts. Okay, so what is the present perfect tense? In the present perfect tense, listen carefully. Firstly, we should need to understand the definitionary part. How we can say any sentences that it is the present perfect sentence, and which structure are essential to the conversation to create the sentences Hindi to English. Okay, also in the short video I have said that कि कैसे हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे, और किसी को अगर किसी को प्रॉब्लम होती है प्योरली इंग्लिश समझने में, तो आई विल यूज दम बाइलिंगुअल. ओके, सो फर्स्टली वी शुड, आई थिंक आप सभी लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानते ही हैं, है ना. तो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में केवल जानना ही इनफ नहीं है, और उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन भी जानना चाहिए, है ना. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, उसका यूज, व्हाट इज द यूज इन ऑन लाइफ. ओके, and how can we convert? Just actually you have seen in your practical life, or you can say in the running life, you have seen that some sentences are comparatively related to the present perfect sentence. Okay, समझ आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है. पहले तो ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, इसके बाद इसका यूजेस क्या है और क्यों हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना. तो ये सब चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है ना. तो अगर हम खाली प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस मीन्स होता है कि जस्ट अभी कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, एनी वर्क, यू कैन से दैट्स द लिटिल बिट, और यू कैन से फिनिश्ड एनी वर्क ड्यूरिंग स्पेंडेड पीरियड. ओके, सो हाउ कैन यू, इफ अगर आप लोग हिंदी में जानते हैं कि हाँ ये काम पूरा हो चुका है, अब किसी को इंग्लिश में बताना है तो फिर कैसे होगा, है ना. कैसे हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे. तो इस सब चीज़ के लिए ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, है ना. और आल्सो यू शुड नीड टू रिमेंबर दैट द इंग्लिश ग्रामर, sentence is the core criteria of the sentence of the English. Okay, and all the grammatical things is the additionary part. So sentence जो है एक बहुत ही कोर एरिया है इंग्लिश सीखने का, है ना. तो जैसे कि मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, कि अगर हम लोग हिंदी में बात करें कि अगर हमें किसी को बताना है कि ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. तो अगर कोई सेम लैंग्वेज वाला है, जैसे इफ़ वी आर related, or we are connected to the one language, then we can easily say that's the what I want to say,
and how can I converge with it? But if anyone is the English version, or you can say if they don't understand the Hindi language, then how can we convert Hindu to English, and how can we talk, or how can we tell the conditions about own selves? Okay, so ये इन सब चीज़ों के लिए प्रेजेंट पर केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जरूरी नहीं है, बाकी के सभी जो सेंटेंसेस है वो भी जरूरी है ना। तो किसी भी किसी भी कंडीशंस को, यू कैन से एनी सिचुएशंस वी शुड नीड टू डिस्क्राइब द इन फ्रंट एनी पर्सन, देन वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड द those language which are they can understand easily. If I can understand in English, then if anyone speak in English, then I can easily understand what he want to say. Okay, but if any person are not know other language but he want to learn other language, then what we should need? They should need to the conversation on other language. Then basically one person need to the basic concept of that language. After then it will apply, and additionally things we will learn, then gradually he will learn another language. Okay, like you can example this, if any person is speaking totally Hindi and there are the another person that cannot understand Hindi, then what will be the first person if want to talk anything, if want to describe any situation, any condition to other person, then he cannot understand in Hindi, he cannot understand Hindi. और जो हिंदी वाला है वो तो केवल हिंदी में ही डिस्क्राइब करेगा, और जो इंग्लिश वाला है वो तो इंग्लिश में ही समझेगा, उसको हिंदी में समझ में नहीं आएगा। तो दो कंडीशंस हैं, एक तो पहले को या तो हिंदी वाले को इंग्लिश सीखना पड़ेगा, या तो इंग्लिश वाले को हिंदी सीखना पड़ेगा। दो में से एक को यू नीड टू चेंज लिटिल बिट लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम। ओके, सो व्हाट विल बी मेजरली वी आर बिलोंग्स टू द हिंदी एरियाज, यू नो, हम लोग हिंदी साइड से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा कि अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं या फिर और अपने से रिलेटेड एग्जांपल दूं, और यू कैन मेजरली इफ आई गिव द एग्जांपल्स ऑन मेजरली ऑन द हिंदी मीडियम, देन यू कैन गेट इजीली। ओके, सो हाउ? तो उसके लिए जैसे कोई हिंदी मीडियम वाला है, अब उसको चाहिए कि उसको इंग्लिश मीडियम में समझाना है, यू नो, हिंदी मीडियम वाला वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन इंग्लिश, देन व्हाट विल बी डू? हिंदी मीडियम वाला क्या करेगा? वो क्या करेगा कि जो उसके हिसाब से जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो उसको कवर करेगा उसकी लैंग्वेज में। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले जो कंडीशंस उसको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब टू अनदर पर्सन, तो पहले क्या करेगा कि उस कंडीशन को पहले अपनी भाषा में तो अच्छे से जानता है, लेकिन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट ही विल डू। ओके, आफ्टर देन ही विल शेयर अनदर पर्सन। ओके, सो to translate Hindi to English, we need to some grammatical things, and these are the grammatical things like pronoun, verb, subject, object, and sentences. Already I have completed present tense, present continuous tense, you know, present indefinite tense. So these things are useful to convert one language to another language. Okay, समझ में आया क्या मैं क्या कहने चाहता हूँ कि व्हाट इज द रोल इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रोल क्या है अपने लाइफ में। हम लोग देखो किसी चीज़ को सीखने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं भैया। एक थीम होना चाहिए ना कि हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं ना, और क्यों का तो ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे ये भी तो जरूरी है ना। क्यों से अगर क्यों का जवाब मिल गया तो क्यों से तो होने वाला है नहीं, उसको ये भी तो सीखना पड़ेगा ना कि कैसे करेंगे। तो वो जो क्यों वाला रिस्पॉन्स है वो है कि सीखना, उसको डिस्क्राइब करना, और कैसे वाला कंसेप्ट है ग्रामेटिकल थिंग को पहचानना। मेरी बात समझ में आई? अगर आप लोग ग्रामेटिकल थिंग को ग्रामेटिकल चीज़ को अच्छे से पहचान जाएंगे, अच्छे समझ जाएंगे, तो कैसे करना है ये ऑटोमेटिकली यू विल नो, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, बट व्हाई यू शुड नीड टू डू, देन इजिली you can do through the how process. ओके, समझ में आया? क्यों करना है, ये कैसे करना है, इसके हिसाब से आप क्यों को पता लगा सकते हैं, है ना। और क्यों को पता लगाने के लिए कैसे का यूज करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो प्रेजेंट देखो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। ओके,
प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, और कैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनली चीज़ें हैं। व्हाट इज द एडिशनल थिंग्स, टू टच, बिफोर द टचिंग ऑफ दिस टॉपिक I will explain some additionally things. What is the additionally things? Like क्या है वो चीज़ें, जैसे वर्ब, ओके। प्रेजेंट में हमने देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि किसी भी सिचुएशन को बताने के लिए, किसी को कुछ कहने के लिए, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए, एनीथिंग टू डू, we have used only majorly, they are essential to describe the situations, two things, watch very majorly or near point of view. How? जैसे इज का प्रेजेंट में हमने पढ़ा था डू या डज, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इज एम आर यूज़ किया था। तो क्यों, टेंस तो प्रेजेंट का ही है, लेकिन हम लोग डू, डज, इज, एम आर क्यों यूज कर रहे हैं, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज कर रहे हैं। एंड अलोंग विद दिस वी हैव यूज द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, उसमें एस और एस लगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज कर देते, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या किया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें ए एन जी लगाया था। तो व्हाट इट इज इंडिकेट, क्या ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब वर्ब में हम लोग आई एन जी क्यों लगाए हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू या डज और उसके साथ वर्ब के साथ एस और एस क्यों यूज किए, है ना। तो मैंने पहले ही, ये अलग बात है कि मैंने ऑल थिंग्स आई हैव डिस्क्राइब इन इंग्लिश, बट नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग इन बोथ बाइलिंगुअल, ओके। सो मैंने पहले ही बताया था कि जो किसी भी सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और क्या, सब्जेक्ट, नो सॉरी, किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मेनली डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कंडीशन, ड्यूरिंग एनी टाइम पीरियड एनी एक्टिविटी हैव डन, to explain that activities we use to the helping verb and verb, okay. So मैंने मेनली उसमें प्रेजेंट में क्या बताया था कि हम लोग अगर कोई नॉर्मल जर्नली होने वाली चीज़ें हैं तो उसमें हम डू या डज का यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई हैव डिस्क्राइब इट दैट्स द, कोई अगर अभी चल रहा है, नाउ कंटिन्यू एनी एक्टिविटी, जैसे मैं अभी कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा प्रेजेंट का है ना। प्रेजेंट का आप समझते हैं कि मतलब जो अभी अभी नाउ मीन्स जस्ट जो अभी हम क्रिया कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, शुरुआत कर दिए हैं, कुछ दूर तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। इसका रोल क्या है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और जो प्रेजेंट, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि भाई मैं ये काम कर चुका हूँ, भाई मैं ये काम अभी कर रहा हूँ, भाई ये काम मुझे करना है, तो ये सब सारी सिचुएशंस बताने के लिए हमें वर्ब फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं नहीं, मतलब मोस्टली इट इज़ द डिपेंड ऑन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर मैंने हेल्पिंग वर्ब उसकी जगह यूज़ कर लिया, क्या बोलते हैं, मैंने हेल्पिंग वर्ब डू की जगह अगर इज यूज कर लिया, देन द सेंटेंस पोजीशन कैन बी चेंज। हाउ, जैसे मैं कहता हूँ कि वह एक दिस इज ए बॉय, वह एक बॉय है, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करूँ कि वह काम कर रहा है, तो ही इज वर्किंग। हेल्पिंग वर्ब मेनली डिफरेंट, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब के साथ आईएनजी भी लगा हुआ है ना। तो क्या जो भी मैंने स्ट्रक्चरल पार्ट आपको समझाए थे उसमें मैंने यही बताया था, और आगे भी यही बताऊंगा। ये अलग बात है कि मैंने उसमें इंग्लिश में डिस्क्राइब किया था तो थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन अगर प्योरली आप इंग्लिश समझने वाले होंगे तो आई कैन श्योर 100% दैट यू विल गेट इट,
मैंने क्या कहा था, वो चीज़ अभी भी वही कह रहा हूँ मैं। स्ट्रक्चरल पार्ट के थ्रू हम लोग ये समझते हैं कि किस सिचुएशंस को, किस टाइम ऑफ पीरियड को, किस एक्टिविटी को कैसे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, है ना। अगर हिंदी का है तो इंग्लिश में, मराठी का किसी, और ये केवल एक ही भाषा पे अप्लाई नहीं है। यू शुड नॉट थिंक दैट्स इफ आई एम रीडिंग इन हिंदी देन ओनली हिंदी Hindu to English convert. No, you can Marathi convert. You can convert Marathi to English. You can convert Odia to English. So these things are essential. Okay. So what is the mainly? तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसका जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट है। एक्टिविटी इज द सेम बट रिप्रेजेंटेशन और यू कैन से ना presentation of this activities is little bit different। कैसे? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने देखा था कि कोई काम अगर हम अभी कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या किया था कि इज का यूज़ किया था और वर्ब में ing लगाया था, है ना। अगर एग्जांपल ना समझ में आ रहा तो देखना, मैं हिंदी में ही ले रहा हूँ क्योंकि हिंदी में समझ में आएगा आपको ज़्यादा, हिंदी में आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। क्योंकि बाइलिंगुअल वाले बच्चों को थोड़ा सा प्योरली इंग्लिश भी नहीं समझते, प्योरली हिंदी भी नहीं समझ सकते, है ना। तो इस वजह से, तो जैसे मैंने कहा था मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है, अपनी भाषा में तो आप समझ सकते हो कि हाँ ये अभी की एक्टिविटी को बता रहा है कि हाँ अभी पढ़ा रहा है ना। और मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, आई एम टीचिंग यू। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस बोलेगा आई एम टीचिंग यू, तो अगर आप इन सब चीज़ों से परिचित होंगे, यू कैन फैमिलराइज होंगे, अगर आप इन सब चीज़ों से फैमिलराइज होंगे तो यू कैन इजीली गेट इट क्या कहना चाह रहा है ये और किस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। सेम एग्जाम्पल आई एम यूजिंग बट वर्ब विल बी डिफरेंट एंड helping verb will be different, okay, and we will we will compare each other, one sentence to another sentence, okay। मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। I have taught you। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, गेस लगाओ। गेस लगाने की क्या बात है, साफ साफ दिख रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अभी जो एक्टिविटी कर रहा हूँ ये सेंटेंस उसके बारे में बता रहा है, तत्काल के बारे में। इफ वी टॉक इन ऑन नेटिव लैंग्वेज, तत्काल, है ना। और ये कह रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब मेरा काम हो चुका, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अभी पढ़ा नहीं रहा, वो मैंने पढ़ा दिया, वो टाइम गया, है ना, स्पेंडेड टाइम। तो ये जो सेंटेंस है वो उस समय को बता रहा है जो समय बीत चुका है, लेफ्टेड, और यू कैन से स्पेंडेड टाइम। और ये उस सेंटेंस को बता रहा है, ये उस एक्टिविटीज को बता रहा है जो अभी हो रही है। हाउ इट इज पॉसिबल, you can easily get it, you can observe that there are difference only two things, and how can it change, केवल दो ही चीजों का रिप्लेसमेंट हुआ है, यू कैन नॉट रिप्लेस बट चेंजमेंट हुआ है। इसके जगह मैंने हैज यूज कर दिया, टीचिंग की जगह मैंने टॉट यूज कर दिया। गलत मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। कैसे? दो चीज़ों से बदलने से ये पूरा कंडीशन ही बदल दे रहे हैं। इसको मैंने बदल दिया, इसको मैंने बदल दिया, तो ये भी बदल गए। समझ रहे हो?
ये टेंस पूरा सेंटेंस ही बदल गया। तो समझ गए। तो इसका रोल क्या है, हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या है, जो एक टाइम पीरियड को दर्शाता है कि हाँ किस टाइम पे क्या हुआ था, और वर्ब क्रिया को बताता है, एक्शन। ओके, सो आई होप दैट्स यू हैव गेट इट ईच एवरीथिंग। व्हाई आर एसेंशियल टू दिस सेंटेंस। ओके, अगर मैं हिंदी में बोलूँगा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमें समझने के लिए ठीक है, हम लोग समझ जाएंगे। जो नेटिव लैंग्वेज जो हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, बहुत ही ईजिली तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश समझना चाहता है, और केवल समझना नहीं चाहते, जैसे हम लोग भी बोलना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम उसे हर से वी वांट टू कन्वर्ट्स विथ इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्या करेंगे उसके लिए हमें ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी, सीखना भी ज़रूरी। तो हमें बोलने के लिए हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना पड़ेगा। अगर हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना है तो फिर हमें ये सेंटेंसेस, ग्रामेटिकल चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि समझ में आया कि मैं क्या तुम्हें कह रहा हूँ, कि मतलब जो वर्ब का रोल है और हेल्पिंग वर्ब का रोल है, वो पूरा सेंटेंस की एक्टिविटी तो नहीं चेंज कर सकता, बट टाइम पीरियड चेंज कर सकता है। समझ रहे, टाइम पीरियड चेंज कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही रेयरली समझने की ज़रूरत है। तो बिफोर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, now I am going to describe the little bit basic part of sentence. Basic part, definitionary part already I have given, है ना। तो क्या है, इसके लिए हमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले वर्ब फॉर्म। वर्ब के बारे में मैंने बताया ही था। वर्ब क्या है, वर्ब तो एक एक्टिविटी है ना, एक्शन है, क्रिया है ना। तो इसके रूप को देखेंगे। रूप क्या है ना। हमारे माँ के कई रूप होते हैं। हमारे पिता के नज़र से देखें तो वो पत्नी का रूप। अगर हम अपने माँ के मतलब अपनी नज़र से देखें तो माँ का रूप। अगर हम बहू की नज़र से देखें तो वो सास का रूप। अगर हम भतीजे के रूप से देखें तो बुआ का रूप। अगर हम बहन के लड़के के हिसाब से देखें तो मौसी का रूप। समझ रहे हो। तो मतलब क्रिया एक ही है लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। इंसान एक ही है लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं। समझ रहे हो। ये किसके अनुसार होता है, देखने के नज़रिए के अनुसार डिपेंड करता है कि हम किस नज़र से देख रहे हैं। समझ रहे हो। इसी तरह ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड ये टाइम पीरियड के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है। तो वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओके, थर्ड फॉर्म। और यू कैन से यू कैन रोमन लैंग्वेज, यू कैन राइट इन रोमन लैंग्वेज, थर्ड फॉर्म। ओके, सो व्हाट इज द। तो आज हम मेजरली कुछ करने वाले नहीं हैं, जस्ट वर्ब के बारे में देखेंगे। और कल से हम जो रफ और यू कैन से रफली नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द जस्ट बेसिक concepts, additional things, and tomorrow I will complete, I will focus, I will concentrate only the present perfect sentence. Okay, तो जैसे गो हो गया। गो का मतलब क्या होता है, जाना। सेकेंड फॉर्म went, थर्ड फॉर्म gone. ओके, कम मीन्स होता है आना। केम, कम। समझ में आया, चमका। इसलिए इसकी इंक बहुत ही डार्क नहीं जा रही है, लाइटली जा रही है, तो इस वजह से मैं इसको इंक से फिल कर दूँ। अरे यार, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। शैतान ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया। वो नुकसान है, देखो, सॉरी। ओके, तो मैंने क्या कहा, देखो
मैं क्या कह रहा हूँ कि सारी वर्ब तो मैं लिखा नहीं सकता, है ना, तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। यूट्यूब आजकल इतना सोशल मीडिया फेमस है, आप लोग कहीं से भी वर्ब को ले सकते हैं, समझ रहे हैं, तो सर्च कर लेना बहुत सारी चीज़ें है। तो कम हो गया एंड व्हाट से है तो बहुत सारी, लेकिन सोच रहा हूँ लिखाऊँ क्या क्या। ट्राई, ओ टेक, टुक, टेकन, टेक मीन्स उधर लेना, ये डस्टर रखा था मैंने ले लिया, समझ रहे हो, ये क्या है, टक टुक टेक, सॉरी टेक टुक टेकन, गेट इट, समझ में आया। तो मेजरली पॉइंट समझ में आया वर्ब का क्या रोल है इसमें। अभी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जैसे मेनली यू कैन एज्यूम दैट द इफ एनीवन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश and you are know about the grammatical things and anyone speak this sentence, that's I have taught you, then how will then what will be, then if you will hear that sentence then you can easily found that that's the which time he is talking it is, है ना। सो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही इसेंशियल है ना। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहीं तक, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर लिखना हो तो कुछ लिख सकते हो, तो एक डिफिनेशन नहीं पार्ट हम डिस्कस किए दे रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस इज द which time period activities that have